के लिए। अगर मैं पूछूं लास्ट 40 डेज का आपका स्टडी प्लान क्या था, क्योंकि अब जीपैट के लिए 25 मई को एग्जाम है। Revision is most important. Even if you are reading almost all the subject, but you are not revising it properly, then at the time of exam you will get nervous. मैम जीपैट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आते हैं जो हमेशा आते हैं, जो पता होता है कि हाँ इससे तो क्वेश्चंस आएंगे ही? Any student join academically, so it will be best for them. तो वो उनका basics भी clear होगा, plus उनको Ms. Tanya Singh Bhadoria, who had scored GPAT 30 and NIPA 31 rank, and she is the faculty of Academically. Welcome to Academically, your one-stop solution for all the healthcare professions. Today we have with us Ms. Tanya Singh Bhadoria, our GPAT faculty. Ma'am had already scored rank 30 in GPAT 2022 and rank 31 in the same year in the NIPER as well. Hello Tanya ma'am, how are you? hello ma'am, I'm fine. How are you? All good. So, welcome to Academically. You have joined Academically as a GPAT faculty, and we are so happy to welcome you. Today, we are here to just give a bit of tips and tricks, and I just want to ask you some questions as to how you prepared for getting the All India rank of 30 in GPAT, which was indeed a great rank, and also in the NIPER exam, also which was conducted in 2022. So, let's start. Are you ready? Yeah, sure ma'am. Okay. Ma'am, the first question for you is what motivated you to prepare for GPAT? Actually, while I am doing my B.Pharm, my friends were preparing for GPAT and NIPER exams. So, Mhm. from a middle class family, I have never dreamed of getting post graduation and getting this job. So that was a dream, like a dream for me. I have starting the self preparation for GPAT, and then after that, I have joined a crash course, and I have secured good ranks. So that's how I get motivated for NIPER exams as well. Okay. So NIPER exam is held, I think, almost 1 month after the GPAT exam, if I'm not wrong. Yes, ma'am. So, like you told me, you have prepared for the GPAT exam. So, is the NIPER preparation also similar to the GPAT syllabus, or like was it helpful for you to prepare for NIPAT since you prepared for GPAT? It is almost similar for the pharma content, but there are some non-pharma content also. Like you have to clarify the aptitude, reasoning, and some of the marketing questions, like Pharm MBA questions, are also there. And Mm-hmm. somewhat GK and GS question will be there. So depend. It will depend how you will preparing for NIPER and GPAT. Hmm. Great. So, ma'am, your rank was like All India rank 30 is a big score, right? So, very, very good rank. So, like, if I would just ask you for all the GPAT students who are going to prepare, है ना, जो आगे GPAT के लिए जाने वाले हैं, आपका स्टडी प्लान क्या था डेली का जब आप प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए? अगर मैं पूछूं लास्ट 40 डेज का आपका स्टडी प्लान क्या था, क्योंकि अब जीपैट के लिए 25 मई को एग्जाम है, तो लास्ट 40 डेज बचे हैं, तो व्हाट वाज योर स्टडी प्लान? I have already read about all the subjects. So for the that last 40 days, I want to just focus on the revision part तो because आपने सिर्फ revision, रिवीजन पे फोकस किया था लास्ट 40 डेज में? yeah, because revision is most important. Even if you are reading almost all the subject, but you are not revising it properly, then at the time of exam you will get nervous and you will almost forget like 50% of the question. And with the revision, I have focused on some minor topics also because there are one or two questions will be coming from that subject. So minor topics are also important. So both you can manage. यस लाइक आप फैकल्टी हमारे एकेडमिकली में, आपने हमारा कंटेंट देखा है, यू टेक आवर क्लासेस, तो इफ आई जस्ट वांट, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं या हमारे प्रोग्राम के बारे में अगर आप चाहो तो आप कुछ बता सकते हो कि एज अ जीपैट एस्पिरेंट जो टॉप 3 रिसोर्सेज हैं आपके पास, कौन सी चीजें होती है जहां से आपको सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर? कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट इज द क्लासेस द हम्म. classes that we provide. So first classes, after classes, you need to prepare, you need to practice the test series. And Yes. after the test series, you need to check what questions you are getting the wrong. Likewise, you need to focus on classes, then test series, and then you need to self-assess your ability, like how you are solving, how is your negative marking. So that's how you can do your preparation. एंड मैम व्हाट आर द टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स लाइक जीपैट के लिए? अगर आपको स्कोर करना है, देयर इज अ सर्टेन कट ऑफ, राइट? यूजुअली कितना कट ऑफ जाता है मैम जीपैट में अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो, एम फार्म के लिए या नाइपर में जाने के लिए? यूजुअली जो हमारे टाइम पे था वो था लाइक 180
For general, I am from Germany, Mm, general now. So I yes. remember it is one. It was like 180 for general, and I don't remember the other like other cutoffs. Mm-hmm. So for the scoring subjects, if you want to say, first one is pharmaceutics. I am from pharmaceutics only. So Okay. first one is pharmaceutics, second one is biology, and third one is pharmaceutical chemistry. अच्छा So अच्छा. it will also cover the analytical part also. So ओके. these three subjects are the most scoring one. अच्छा. ओके ग्रेट. तो मतलब अगर इन सबको हम स्कोर पढ़ेंगे तो हमारे स्कोर अच्छे आएंगे, राइट? Yeah. हम्म. और अगर मैं पूछूं कि क्योंकि आप जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, यू वर अ कॉलेज स्टूडेंट, तो जो हमारे फाइनल ईयर सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो गोइंग टू सिट फॉर द जीपैट एग्जाम, कैसे वो प्रिपेयर करेंगे? मतलब अब लास्ट लास्ट में कॉलेज और जीपैट की प्रिपरेशन को कैसे वो पूरा करेंगे? जैसे अगर उन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं करी जीपैट की और वो सोच रहे हैं कि लास्ट 40 डेज में वो जीपैट के लिए प्रिपेयर करें, तो कैसे प्रिपेयर करें? तो उसके लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स रहती है या इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, लाइक उसको तुम फ्लैश कार्ड बना के यूज कर सकते हो। तो हम्म. उसमें उसको तुम एक दो बार पढ़ोगे तो वो तुम्हें याद हो जाएंगे बाय हम्म. हार्ट। और हम्म. वहाँ हम्म. पे एग्जाम में भी तुम्हारे लिए वो पॉइंट जो रहेगा स्कोरिंग रहेगा। और हम्म. विद कॉलेज अगर बात करें तो हम कॉलेज में भी हम फार्मा वाला सिलेबस ही पढ़ते हैं। हम हम्म. डिटेल में पढ़ते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं। तो बेसिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर क्लियरिंग जीपैट। इफ यू हैव हम्म. अ क्लियर बेसिक्स then you can get qualifying marks. It is sure. तो हम्म. फर्स्ट बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे कॉलेज से। एंड आफ्टर दैट तुम्हें कुछ कुछ ट्रिक्स याद करनी है, कुछ पॉइंट्स ऐसे याद करने हैं। सो उसको तुम फ्लैश कार्ड बना के रख सकते हो, पॉकेट में या डायरी में लिख के रख सकते हो। जब तुम्हें फ्री टाइम मिले तुम एक बार उसको रिवाइज कर लो। दैट्स हाउ यू कैन मैनेज बोथ एट द सेम टाइम। हम्म. मैम जीपैट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आते हैं जो हमेशा आते हैं, जो पता होता है कि हाँ इससे तो क्वेश्चंस आएंगे ही? इसमें लाइक तो स्यूटिक्स का पार्ट अगर ले तो उसमें से जो हमारी मेन फॉर्मुलेशन रहता है, लाइक टैबलेट्स रहते हैं, पैरेंट्रल्स, ऑप्थेल्मिक, ये जो मेन फॉर्मुलेशन है उसमें से तो क्वेश्चन आते ही है। देन कोलोजी का हम बात करें तो कोलोजी में से क्लासिफिकेशन से 1 or 2 क्वेश्चन विल बी देयर। हम्म. एंड इन कोग्नोसी देयर विल बी द क्लासिफिकेशन पार्ट, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड जूरिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जूरिस से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हम्म. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो तुम्हें करने चाहिए स्टूडेंट को। ओके. तो मैम द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज यू आर अ जीपैट फैकल्टी एट एकेडमिकली, आप बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट एकेडमिकली में एनरोल करता है तो एज अ फैकल्टी एंड एज अ मैनेजमेंट व्हाट विल यू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स? Actually, I have joined academically as a faculty. So here हम्म. we are delivering the various subjects depending upon the syllabus. तो हम्म. हम लोग सब जो डिलीवर करते हैं टॉपिक्स के साथ, तो हम लोग की पॉइंट्स पे भी फोकस करते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स है। लाइक बेसिक्स तो तुम्हारे क्लियर रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ हमारे जो की पॉइंट्स रहते हैं जो जीपैट और नाइपर एग्जाम्स में लाइक डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं उन की पॉइंट्स से। तो वो की पॉइंट्स हमारे लेक्चर्स में ऑलरेडी रहते हैं। तो हम्म. अगर इफ एनी स्टूडेंट ज्वाइन academically सो इट विल बी बेस्ट फॉर देम। तो वो उनका बेसिक्स भी क्लियर होगा, प्लस उनको वो की पॉइंट्स भी मिलेंगे। एंड साथ ही साथ अगर हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं और अगर टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर देम। करेक्ट. और मैम हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो बच्चे को दे गेट टू नो अबाउट देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ कि हाँ भी मुझ पे काम, इस पे काम करना है और इस पे मेरी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. राइट. सो एवरीबडी, दिस वाज मिस तान्या सिंह भदौरिया who had scored GPAT 30 and NIPA 31 rank, and she is the faculty of Academically. Please join Academically and get yourself a good guidance from all these top faculties for your GPAT preparation. Academically join करें और आप इन सब फैकल्टी से जो उन्होंने बहुत सेम स्ट्रगल आपकी तरह देखा है और अच्छे रैंक हासिल किए हैं इस जीपैट के एग्जाम में, वो आपको गाइड करेंगे और जीपैट आपका जरूर से जरूर अच्छा होगा. सो विल बी ब्रिंगिंग ऑन मोर वीडियोस ऑन जीपैट. थैंक यू सो मच तान्या मैम फॉर जॉइनिंग अस. राइट, इट वाज थैंक अ यू ग्रेट मैम, प्लेजर. Thank you, इट्स नाइस everybody. मीटिंग। Thank you. If you have liked this video, please like, share, and subscribe. And please join the channel of Academically, and we'll be bringing more videos for you. Thank you so much. See you. Bye bye.